Good afternoon, dear students. Now I am very happy to take the first class of your English literature. So, students, you all know that there are the three books for you in class 6 DAV board. First one is English literature, second one is English practice book, and third one is English reader. So, first of all, today we are going to start our first chapter of English literature, that is How Daddy Decided What He Wanted to Be, and it is written by Alexander Ruskin. So, students, before starting this chapter, I would like to explain you the summary of this chapter. This story, How Daddy Decided What He Wanted to Be by Alexander Ruskin, is a very fantastic and full of the fantasies. It is rather realistic happenings about Alexander's day to day life, and this story is told by Alexander Ruskin to his daughter Sasa when once a time she was sick. So he just telling the story about his own life when he was a small child. It is daddy's story to his daughter. Okay, and the story is very funny, very realistic, and I hope that you will get a lot of interest in this story. Actually, Alexander Ruskin was a Russian writer, and he wrote many of the stories. Among them, this one is also, which is given in your book. So, before going through the book, going through these lines, I would like to explain some thing about this story. First of all, dear students, his father, means Sasa's father, who is just explaining about himself, he was not sure that what he wanted to be in his life. सासा के जो पिताजी हैं, पापा हैं, वो अपने लाइफ को लेकर के ये कहानी अलेक्जेंडर रस्किन ने खुद के बारे में लिखी है, और ये कहानी उन्होंने अपनी बच्ची को, सासा जो कि बीमार है, उसको सुना रहे हैं, और वो अपने लाइफ के बारे में बता रहे हैं जब वो 6 साल के या 11 साल के, 6 से 11 साल के बीच में थे, जब इनकी उम्र थी, तो वो क्या करते थे, मतलब वो कभी कुछ डिसाइड नहीं कर पाते थे कि उन्हें क्या बनना है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है हाउ डैडी डिसाइडेड व्हाट ही वांटेड टू बी, मतलब डैडी ने कैसे ये डिसाइड किया कि वो क्या बनना चाहते हैं। मतलब वो एक के बाद एक आप देखेंगे इस स्टोरी के थ्रू, तो वो कम से कम 7 8 9 कैरेक्टर्स को अपने जीवन में लाना चाहते हैं। पहले वो कुछ नाइट वॉचमैन बनना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ लिसन इट इन इंग्लिश। ही वांटेड टू बी अ नाइट वॉचमैन at first, and it was a very funny that everybody want to be an officer, everybody want to be a doctor, everybody want to be a collector, DM, like this, means nobody wants to take the profession of night watchman. But in starting of this story, his father want to be a night watchman, means Alexander Ruskin, when he was at 6 year old, he want to be a night watchman. Why he, when his parents asked that why do you want to be a night watchman, आप नाइट वॉचमैन क्यों बनना चाहते हो, जब उनके पेरेंट्स ने पूछा, तो उन्होंने कहा एक्चुअली आई वांट टू बी अ नाइट वॉचमैन बिकॉज व्हेन एवरीबडी विल स्लीप एट नाइट आई विल अवॉक, मतलब जब सभी लोग सो रहे होंगे रातों में तो मैं जाग रहा हूँगा, इसलिए मैं सो देयरफॉर आई वांट टू बी अ नाइट वॉचमैन. एंड one day he saw a ice cream seller, and at that time, on the other day, he just changed his mind. He now decided to be a ice cream seller because he was fascinated by the green card. जो आइसक्रीम सेलर होते हैं उनके पास ग्रीन कार्ड या फिर रेड कार्ड होता है ना, उसको देख करके वो पूरी तरह से फैसिनेटेड हो गए, ये छोटे बच्चों की तरह. And he was completely fascinated by that green card. So he just changed his mind. Now he does not want to become a night watchman. Now he want to be a ice cream seller. And once again his parents asked that why do you want to be a ice cream seller, and he replied that I want to be a ice cream seller because I like
एंड फैसिनेटेड बाय दैट ग्रीन कार्ड। और मैं जब बनूंगा आइसक्रीम सेलर तो मैं छोटे छोटे बच्चों को आइसक्रीम सब ऐसे दूंगा, और जब भी दो लोगों को आइसक्रीम दूंगा तो एक आइसक्रीम मैं खुद भी खाऊंगा। ओके, फिर उसके बाद आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे, यू ऑल विल माइंड इट दैट व्हाट ही वांटेड टू बी। तो पहले वो नाइट वॉचमैन बनना चाहता है, दूसरा आइसक्रीम सेलर बनना चाहता है, एंड थर्ड ही वांट टू बी अ sunter. He want to be a sunter. Do you know what is a sunter? A sunter is a person who try to join the wagons of rail with its engine. Because one day he went to a station with his father, and there he saw a person who was just trying to shunt the wagons and was just playing with the cars. So he just changed his mind and wanted to be a shunter. In this way, finally he saw many motorbikes, cars, aeroplanes, so he decided to become a pilot. In this way, many times he changed his mind. Finally, he wanted to be an actor. In this way, he tried to choose many of the professions. Now, let us start the explanations of the chapter. I am going to start from the first line, and finally, after explanations, I will also give you some questions and answers, and you will do it. And during 2 to 5 o'clock today, everybody will show me their homeworks, their works, whatever I will give you through the PDF. Okay, so let us start the explanations, and you all will see this either if you have book or through the help of internet. You can just see these lines. When daddy was little, he was often asked, what do you want to be when you grow up? Means he is describing himself that when I was a child, my parents used to ask me what I want to be in my life, means what kind of profession I would like to choose. Daddy always had an answer ready, and whenever anybody asked, any member of his family used to ask him that what you want to be, he has already a answer. But each time his answer was different, means he was not fixed with his answer. Every time whenever anybody used to ask him the questions, he also changed his answers time to time. At first, daddy wanted to be a night watchman. In starting, I have already told you through the summary of this chapter, the story, that at first he wanted to be a night watchman, and I also told you that why he wanted to be a night watchman. He liked to think that while the whole town was asleep, मतलब वो क्यों बनना चाहता था नाइट वॉचमैन? Actually, students, I can explain you the whole story only in English, but I hope and I know that if I will explain this only in English, then you are not going to understand all the story. अगर मैं सिर्फ इंग्लिश में इसको नरेट करूँगा तो आप लोग इसको नहीं समझ पाओगे. सो टाइम टू टाइम आई एम आल्सो एक्सप्लेनिंग इट इनटू हिंदी सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व इट. मतलब उससे जब पूछा गया कि आप नाइट वॉचमैन क्यों बनना चाहते हो, तो उसने कहा कि ही लाइक टू थिंक दैट वाइल द होल टाउन वॉज अस्लीप. वो ये सोचता है या ये पसंद करता है कि जब पूरा शहर सो रहा होगा, द नाइट वॉचमैन वॉज अप, तब वो नाइट वॉचमैन जाग रहा होगा. दैट इज़ वाई आई वॉन्ट टू बी अ नाइट वॉचमैन. एंड ही लाइक टू थिंक दैट ही कुड मेक अ नॉइज व्हेन एवरीवन वॉज स्लीपिंग. And he was also thinking in his mind that whenever everybody was sleeping, at that time he can make a lot of noise. He was quite certain he wanted to be a night watchman when he grew up. Means in this way, in the starting of the story, he was completely fixed that he will be a night watchman when he will grow up. But then the ice cream man came along with his bright green card. मीन्स स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहले वो नाइट वॉचमैन बनना चाहता है. क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि वो उसके प्रोफेशंस जो उसके माइंड में प्रोफेशंस आते हैं उसका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको लिखिए, ठीक है ना.
so you will mind it that first time he wanted to be a night watchman, and second time he saw a green cart of ice cream seller, so he wanted to be a ice cream seller when he grew up. But then the why he could push a cart, he could eat all the ice cream he wanted to, means he wanted to be ice cream seller so that he could push up the green card, and he could also eat some of the ice creams from that green card. I shall eat a stick of ice cream for everyone, I shall, daddy thought. डैडी थॉट मतलब जब डैडी छोटे थे तो उन्होंने ये सोचा कि जब मैं छोटा रहूँगा तो फिर मैं सबको एक एक स्टिक दूंगा, मतलब आइसक्रीम की एक एक स्टिक्स दूंगा, एंड आई शैल ट्रीट लिटिल चिल्ड्रेन टू द आइसक्रीम, मीन्स all the little children were given separately by an ice cream by me. Little Daddy's parents were very surprised when they heard that their son wanted to be an ice cream man. मीन्स whenever जब भी आप अपने घर से बताओ, घर के पेरेंट्स से या फिर किसी भी मेंबर से आप बताओगे कि आई वांट टू बी आइसक्रीम सेलर, सो एवरीबॉडी विल सरप्राइज ऑफ योर आंसर्स बिकॉज he just dreamed about you that you will become an officer in your life, but you have just decided to become a ice cream seller. It is not good. तो उसी तरह से उसने जब अपने घर में बताया कि मैं आइसक्रीम सेलर बनना चाहता हूँ तो सभी लोग पूरी तरह से सरप्राइज थे. इट वॉज क्वाइट फनी फॉर देम, और ये पूरी तरह से उनके लिए एक मजाकिया था. बट ही थॉट इट वुड बी अ वेरी टेस्टी way of being grown up. And writer means Alexander Ruskin thinking himself that it would be a very funny, जब हम लोग धीरे धीरे मैं बड़ा होऊंगा तो ये मेरे लिए बहुत ही मजा की चीज़ होगी. Then one day little daddy saw a man at the railway station, means one day with the daddy went with his daddy. एक दिन अलेक्जेंडर रस्किन अपने डैडी के साथ स्टेशन गए. The man kept playing with the cars and locomotives, and there on the station he saw a man and he was playing with the cars and the locomotives. Locomotives means wagons and the railway engines. Okay, वो कारों के साथ और लोकोमोटिव्स इंजन्स के साथ जो भी वो थे वो उनके साथ वो कुछ न कुछ कर रहा था. He was doing something. But these were real cars and real locomotives. He had jumped on to the platforms and crawled under the cars. And after looking all these things, what were happening by that persons with the locomotives and the cars, he jumped up and become a very happy. Crawl मतलब वो अपने दोनों बाहों के सहारे रेंगते हुए वहाँ पर गया. प्लेइंग ए स्ट्रेंज एंड वंडरफुल गेम, और उसको लगा कि वो बहुत ही एक अच्छा स्ट्रेंज, बहुत ही विचित्र और अच्छा गेम खेल रहा है. Who is that man? Daddy asked. Means he asked his daddy that who is that man? वो आदमी कौन है? He is the shunter, he was told. Means उसको ये बताया गया कि वो एक shunter है. Shunter means the person who used to connect the wagons, railway wagons with its engine. That is called the shunter. Now students, look at here. First time he wanted to be a night watchman. Second he wanted to be a ice cream seller. Finally, after reaching at a station, he looks a shunter and he now would want to be a shunter. Now little daddy knew that. Now let us see on the lines. Now little daddy knew what he wanted to be. Just think, मतलब ये देखने के बाद अब पूरी तरह से अब उनके दिमाग में, जब मैं छोटा था तो मेरे डैडी के दिमाग में आ गया कि हाँ ये अब क्या बनना चाहता था. He would shunt railway cars. अब वो क्या होगा, क्या करेगा, रेलवे कार्स को, रेलवे के जो भी वैगन्स होंगे उनको वो शंट करेगा. व्हाट इन द वर्ल्ड कुड बी मोर इंटरेस्टिंग? नथिंग ऑब्वियसली. व्हेन डैडी सीड दैट ही वुड बी अ शंटर, समवन आस्क्ड हिम, बट व्हाट अबाउट द आइसक्रीम? मीन्स after telling that he wanted to be a shunter and he would like to shunt the cars, locomotives, but after knowing his decision, everybody asked him that what happened about your ice cream seller?
क्या होगा आपके आइसक्रीम सेलर का? तो आइसक्रीम सेलर आप नहीं बनना चाहते हैं। देन व्हाट इज द आंसर? नाउ लेट अस रीड। दिस वाज अ प्रॉब्लम। डैडी हैड डिसाइडेड टू बिकम अ सेंटर, but he did not want to give up the bright green ice cream cart. At last he found a way out. और ये पूछे जाने पर कि तब फिर क्या होगा जब आप सेंटर बनोगे, तो फिर वो आइसक्रीम सेलर कैसे बनोगे? फिर डैडी के दिमाग में, जब वो बच्चे थे तो उनके दिमाग में ये आया कि, और फिर उनके दिमाग में एक उसका सॉल्यूशन आया। फिर उन्होंने कहा, एवरी वन वॉज वेरी सरप्राइज्ड बट लिटिल डैडी एक्सप्लेन्ड इट ऑल क्वाइट क्लियरली। मतलब सभी लोग पूरी तरह से एकदम आश्चर्यचकित थे कि वो सेंटर और आइसक्रीम सेलर कैसे बन सकता है दोनों। लेकिन डैडी ने उसको पूरी स्पष्ट तरीके से उसको समझाने का कोशिश किया। दैट इज़ नॉट हार्ड एट ऑल। आई विल सेल आइसक्रीम इन द मॉर्निंग। आफ्टर सेलिंग इट फॉर अ वाइल आई विल गो टू द स्टेशन। ये बहुत ही कठिन काम नहीं है। सबसे पहले मैं आई विल सेल आइसक्रीम इन द मॉर्निंग, सुबह के समय मैं आइसक्रीम बेचूंगा। आफ्टर सेलिंग इट फॉर अ वाइल, और इसको कुछ घंटे या कुछ क्षण के लिए बेचने के बाद आई शैल गो टू द स्टेशन, मैं स्टेशन को जाऊंगा। देयर आई शैल शंट सम कार्स एंड गो बैक टू सेल सम मोर आइसक्रीम्स, और वहाँ पर फिर मैं कार्स को शंट करूंगा और फिर शंट करने के बाद फिर जाऊंगा मैं कुछ और आइसक्रीम बेचने के लिए। देन आई शैल गो बैक टू द स्टेशन एंड शंट द कार्स अगेन, और फिर बेचने के बाद फिर से मैं स्टेशन आऊँगा और फिर कार को शंट करूँगा। देन आई विल गो बैक टू द स्टेशन, सॉरी हो गया है, एंड देन आई सेल सम मोर आइसक्रीम, और उस समय मेरे पास कुछ और भी अधिक आइसक्रीम होंगे। इट वुड नॉट बी हार्ड, और ये मेरे लिए बहुत ही कठिन नहीं होगा। बिकॉज आई सेल पार्क माई कार नियर द स्टेशन एंड आई वुड नॉट हैव फार टू गो टू द ट्रेन्स। बिकॉज इट वुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर मी, इट वुड नॉट बी डिफ़िकल्ट, ये कार को शंट करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा, इसलिए क्योंकि स्टेशन के बगल में ही मैं जितने भी रेलवे के वैगन्स होंगे सबको मैं शंट करूँगा और मैं आ जाऊँगा और फिर दोनों काम करता रहूँगा इस तरह से। एवरीवन लाफ्ड अगेन। देन लिटिल डैडी गॉट एंग्री एंड सेड, मीन्स आफ्टर लिसनिंग ऑल दीज फैक्ट्स क्लियरली बाय लिटिल डैडी द फैमिली मेम्बर्स लव्ड एट हिम। ये सब चीज़ सुनने के बाद जो भी फैमिली मेम्बर्स थे उसके ऊपर, छोटे बच्चे के ऊपर बहुत ही तेज़ी से हंसे। और फिर ये छोटा बच्चा, जो छोटे डैडी थे, वो पूरी तरह से एंग्री हो गए, गुस्से में हो गए, और फिर उन्होंने कहा, इफ़ यू आर गोइंग टू लाफ एट मी आई शैल बी अ नाइट वॉचमैन बिसाइड्स, आफ्टर ऑल देयर इज़ नथिंग टू डू एट नाइट। अगर आप सभी लोग मेरे पर ऐसे हंस रहे हैं तो मैं फिर से नाइट वॉचमैन बन जाता हूँ, क्योंकि सब मिला जुला करके आफ्टर ऑल देयर इज नथिंग टू डू एट नाइट, रातों में कुछ भी नहीं करना होता है। इट वॉज ऑल सेटल्ड बट देन डैडी वांटेड टू बी अ पायलट। अब पूरी तरह से सेटल था कि अब डैडी जो है नाइट वॉचमैन ही बनेंगे, लेकिन ही वांटेड टू बी अ पायलट, फिर से वो क्या बनना चाहते थे? पायलट। देन ही वांटेड टू बी एन एक्टर, फिर उसके बाद वो एक्टर बनना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले वो नाइट वॉचमैन, फिर आइसक्रीम सेलर, फिर उसके बाद सेंटर, फिर उसके बाद वो पायलट, फिर उसके बाद वो एक्टर, ठीक है। फिर एक्टर के बाद वो क्या बनना चाहते हैं? डैडी वांटेड टू बी अ पायलट, देन ही वांटेड टू बी एन एक्टर, बट आफ्टर ग्रैंड पा टूक हिम टू अ फैक्ट्री ही डिसाइडेड टू बी अ टर्नर। लेकिन जब उनके ग्रैंड पेरेंट्स, जो दादाजी थे, उनको एक फैक्ट्री में ले गए, वर्कशॉप में ले गए, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो लकड़ियों का टर्नर मीन्स अ वुड कटर मशीन, ओके, दैट इज आल्सो कॉल्ड अ लैथ। तो वो देखे, उसके बाद वो ही डिसाइडेड इन हिज माइंड टू बिकम अ टर्नर, बिसाइड्स ही वांटेड टू बी अ सेलर, और फिर इसके बाद वो सेलर भी बनना चाहते थे, नाविक भी बनना चाहते थे, आर एट लीस्ट अ शेफर्ड एंड स्पेंड हिज डेज वॉकिंग अबाउट विथ हिज काउस क्रैकिंग विथ हिज वीप लाउडली। और फाइनली फिर वो शेफर्ड बनना चाहते थे, गडेरिया बनना चाहते थे, सो दैट ही कुड वॉक इन द फॉरेस्ट विद द वीप मतलब एक ऐसी रस्सी की ली हुई जिससे गुबादे की तरह, और उसको चारों तरफ घुमाना चाहते थे ले करके, और अपने काऊ के साथ जाना चाहते थे। ओके, नाउ टर्न द पेज नंबर 3। फाइनली ही डिसाइडेड दैट ही रियली वांटेड टू बी अ डॉग, और फिर अंत में उन्होंने एक कुत्ता बनना चाहा। फिर वो कुत्ता बनना चाहते थे, क्यों? जब वो डैडी छोटे थे, 6 से 11 साल के बीच में थे, ही वांटेड टू बी अ डॉग फाइनली।
All that day he ran around on all fours. मतलब अपने चारों, दोनों पैर, दोनों हाथों पर, चारों तरफ वो, like the dogs he tried to crawl everybody in each directions, barking at strangers, and he was just practicing to become a dog, that whatever dogs can do, he also wanted to do at that time. Means he was doing everything just like a dog because he wanted to be a dog. Suppose that if you want to be an engineer, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी होगी, तो उसी तरह से डैड क्या चाहते थे बनना, डॉग बनना चाहते थे. सो ही जस्ट प्रैक्टिसिंग to bark, he just practicing to beat, he just practicing to do the activity like the dogs, barking at strangers. He even tried to bite an elderly lady when he wanted to pat his head. Pat his head means थपथपाना, सर को थपथपाना. वो एक एल्डरली लेडी को एकदम काटना चाहते थे जब उस एल्डरली लेडी ने उनके सर को थपथपाना चाहा तो. बट ही कुड नॉट लर्न हाउ टू स्क्रैच बिहाइंड हिज ईयर विथ हिज फुट. लेकिन जैसे कुत्ते अपने सर के पीछे अपने पैरों से खुजलाते हैं ना, तो वो प्रैक्टिस कर रहे थे कुत्ते की तरह अपने सर को खुजलाने के लिए, लेकिन वो खुजला नहीं पाए. ही वॉज जस्ट प्रैक्टिसिंग टू स्क्रैच हिज हेड्स with the help of his legs as almost the dogs used to do. But he thought that it is a very hard work. I can't do like this. He thought that if he went outside and sat next to river, मतलब फिर उन्होंने सोचा कि अगर वो बाहर जाते हैं और रोवर इज़ द नेम ऑफ द पेट डॉग ऑफ हिज फैमिली. रोवर उनके फैमिली का एक पेट डॉग है, पालतू कुत्ता है. और उन्होंने सोचा कि अगर वो बाहर जाते हैं और वो रोवर के बगल में बैठते हैं तो वो शायद सीख सकते हैं. ही हैड मोर क्विकली, जल्दी से. दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट ही डिड. और वास्तव में उन्होंने ऐसा ही किया. जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि एक बार न्यूटन जो था पक्षियों की तरह अंडा देना चाहता था, तो अंडों को हैच करने लगा, सेने लगा, तो वो अंडों पर बैठ गया. उसी तरह से ये डैड हैं. डैड अपने आप को कुत्ते की तरह बनाना चाहते हैं, इसलिए वो कुत्ते की तरह बाहर जा कर के रोवर जो डॉग है उसके बगल में बैठ गए और वो चाहते थे अपने सिर को खुजलाना अपने पैरों से. बट ही वॉज नॉट एबल टू डू दिस, सो ही जस्ट वांटेड टू लर्न इट फ्रॉम द रोवर. व्हाट आर यू डूइंग? Sorry, from here. Just then an officer came walking down the street. और तभी एक ऑफिसर उस स्ट्रीट से गुजरा टहलते हुए. ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड एट डैडी. और वो ऑफिसर वहाँ पर रुक गया और डैडी की तरफ देखा. ही वॉच्ड हिम फॉर अ व्हाइल एंड देन ही आस्क्ड. कुछ क्षण के लिए उन्होंने डैडी को देखा और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हो? I want to be a dog, little dad said. जब डैड छोटे थे तो उन्होंने कहा कि मैं एक कुत्ता बनना चाहता हूँ. डू नॉट यू वांट टू रिमेन ह्यूमन? क्या तुम मानव नहीं रहना चाहते हो? आई हैव बीन ह्यूमन बीइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, डैडी सेड. और डैडी ने कहा कि नहीं, मैं बहुत ही लंबे समय से ह्यूमन रह चुका हूँ, मानो रह चुका हूँ. व्हाट सॉर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग आर यू इफ़ यू कैन नॉट इवन बी अ डॉग? तो तुम, फिर उस ऑफिसर ने पूछा. देन वंस अगेन दैट ऑफिसर इज आस्किंग दैट व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग आर यू? तो आप किस प्रकार की ह्यूमन बीइंग हो, किस प्रकार के मानव हो, जबकि आप एक कुत्ता नहीं बन सकते हो. तो इज़ दैट व्हाट अ ह्यूमन बीइंग इज़ लाइक? क्या ये है मानवता जो कि आप दिखा रहे हो? वेल, व्हाट इज़ ही लाइक? डैडी आस्क्ड. ठीक है, क्या आप बनना चाहते हो? डैडी ने आस्क. व्हाट इज़ ही लाइक? डैडी आस्क. तो फिर उन्होंने पूछा, डैडी ने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं? यू थिंक अबाउट इट योर सेल्फ. तुम अपने बारे में सोचो. द ऑफिसर सेड एंड वॉकड अवे. और ऑफिसर ने ये कहते हुए फिर वो आगे चला गया. नाउ स्टूडेंट्स, टर्न द पेज नंबर 4 इफ़ यू हैव बुक. And if you don't have book, now you can see from this video. Last line. He was not laughing and
did not even smile. Means after listening the words of that officer, daddy was completely considerate at that time, because he was not able to think what he is exactly doing. Means neither he could laugh at that time nor he can smile. But little daddy suddenly felt much ashamed of himself. लेकिन जब छोटे थे डैडी, तभी उनको अपने आप पर ashamed मीन्स एक शर्म सी आई. एंड ही बिगैन टू थिंक, एंड ही जस्ट स्टार्टिंग थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ. और उन्होंने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया. ही थॉट एंड मोर ही थॉट. उन्होंने सोचा और भी सोचा और बहुत ही ज़्यादा सोचा अपने बारे में. द मोर असेम्ड ही वॉज ऑफ हिमसेल्फ, एंड ही वॉज कम्प्लीटली असेम्ड अबाउट हिमसेल्फ दैट व्हाट ही वांटेड टू बी. वो क्या बनना चाहते थे, इसकी वजह से वो पूरी तरह से अपने आप पर शर्मिंदा थे. द ऑफिसर हैड नॉट एक्सप्लेन्ड एनीथिंग टू हिम, बट ही सडनली अंडरस्टूड दैट ही कुड नॉट चेंज हिज माइंड एवरी डे. मतलब ऑफिसर ने उस समय तो उनको बहुत कुछ नहीं समझाया, लेकिन वहाँ पर उन्होंने तुरंत समझ गए कि वो रोज़ रोज़ अपने डिसीजंस को बदल नहीं सकते हैं. एंड व्हाट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और क्या उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्या है, ही रियलाइज दैट ही वॉज टू स्मॉल टू नो व्हाट ही वांटेड टू बी. और उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि वो अभी बहुत ही छोटे हैं और वो क्या बनना चाहते हैं ये समझने के लिए बहुत ही अभी छोटे हैं. द नेक्स्ट टाइम ही वॉज आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, ही रिमेंबर्ड द ऑफिसर एंड सेड. और अगली बार जब पेरेंट्स ने, उनके घर के फैमिली मेम्बर्स ने सेम क्वेश्चंस पूछा, जैसे वो हमेशा पूछा करते थे कि व्हाट यू वांटेड टू बी, तो उन्होंने इस क्वेश्चन को सुनने के बाद, डैडी ने इस क्वेश्चन को सुनने के बाद तुरंत उनको, उनके दिमाग में उस ऑफिसर्स की बात आई. तो उन्होंने कहा आई वांट टू बी अ ह्यूमन बीइंग. मैं एक मानव बनना चाहता हूँ. आई वांट टू बी अ ह्यूमन बीइंग. नो वन लाव्ड. और अब की बार कोई भी उनके इस आंसर पर, रिप्लाई पर नहीं हंसा. एंड लिटिल डैडी अंडरस्टूड दैट दिस वॉज द बेस्ट आंसर ऑफ ऑल. और अब जो डैडी थे, छोटे जब थे, तो उन्होंने समझ लिया कि दिस आंसर वॉज रियली द बेस्ट आंसर एमॉन्ग माई ऑल आंसर्स. दैट ही चेंज्ड हिज माइंड मेनी टाइम्स, ही चेंज्ड हिज डिसीजंस मेनी टाइम्स. बट नाउ आफ्टर टॉकिंग, आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट द लाइफ what he wanted to be with that officer, he has realized that he has to be a human being first. Before being something, you must have to be a human being first. Sorry. He still thinks so. और वो अभी बड़े होने के बावजूद भी ऐसा सोचते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बींग. सबसे पहले आपको बहुत ही एक अच्छा इंसान बनना चाहिए. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ पायलट एंड अ शेफर्ड एंड एन आइसक्रीम मैन. और ये एक किसी भी इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि वो पायलट के लिए, चाहे वो शेफर्ड के लिए, चाहे वो आइसक्रीम मैन के लिए. एंड आफ्टर ऑल अ ह्यूमन बीइंग डज नॉट रियली हैव टू नो हाउ टू स्क्रैच बिहाइंड हिज ईयर विथ हिज फूड. और एक मानव को ये नहीं जानने की ज़रूरत होती है कि वो अपने कानों को और पैरों को कैसे खुजलाए. ठीक है. थैंक यू स्टूडेंट्स. नाउ आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस थ्रू दिस through the PDF file, and I hope that you all will solve your questions. And regarding this chapter, if you have any confusion, you can ask me, you can write me, you can record your audios, and you can ask me your questions. And after the next class, after today, when we will meet again, I will make you sure to complete your chapters with the question and answers and remaining exercise. Thank you very much.